করি আজ এই 1 ঘন্টা পড়লাম তো একদম উদ্ধার হয়ে গেলাম। এরকম একটা অ্যাটিটিউডে পড়াশোনা করছিস যেন নিজেই নিজেকে উদ্ধার করে দিচ্ছিস। তাই চল নতুন টপিক ডিসকাস করি। রেকর্ডিং স্টার্টেড? হ্যাঁ দাদা। हेलो। ओके। ओके सर। चलो, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो आज क्या होगा? आज क्या पढ़ेंगे सर? हम लोग कल ना, मतलब येस्टरडे वाला क्लास में लीगल एस्पेक्ट स्टार्ट किया था। तो चलो लीगल एस्पेक्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। নন্দন অরিত কি হলো রে? অরিত আজকে জয়েন করলো না? স্যার অরিতের শরীর খারাপ, মানে ওর কালকে জি। থেকেই জ্বর ছিল, কিন্তু কালকে ক্লাস করেছিল, তারপর আজকে আর মানে আরো বেশি শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ওয়েদারটা খুব খারাপ। ম্যামের খুব শরীর খারাপ কাল থেকে, এখন একটু অনেকটা ভালো আছে। ওয়েদারটা খুব ওর খারাপ। স্যার ওই চোখে প্রবলেম হয়েছে। হ্যাঁ ওই তো কনজাংটিভাইটিস। হ্যাঁ প্রথমে চোখে, হ্যাঁ। প্রথমে প্রথমে কারো চোখে প্রবলেম। সবার হচ্ছে কনজাংটিভাইটিস, সবার হচ্ছে। খবরে দেখছিলাম। খুব প্রচুর হচ্ছে ইনফেকশন। স্যার পঞ্চায়েতের রেজাল্ট, কিটা? আজকে পঞ্চায়েতের রেজাল্টের ফল, এটা জয় বাংলা। ও আচ্ছা। পিয়ুষ তো মানে লেভেল আনসার। না এটা একটা জয়বাংলা কেস ছিল, বুঝলো তো দাদা। হ্যাঁ কি হ্যালো, হয়েছে? হ্যাঁ এটা একটা কেস ছিল, বুঝলো তো, যখন যখন ওই বাংলাদেশ যখন একটা যুদ্ধ হয়েছিল, তখন রাজা, মানে তখন রাজাদের দিন চলছিল, বাংলাদেশ এই জিতেছিল। তো সেই টাইমে যে রাজার যে প্রজারা ছিল, বা প্রজা বলছি মানে যে যারা যুদ্ধ বুদ্ধ করছিল, তাদের এই রোগটা দেখা দিয়েছিল। তারপর থেকে নাকি এটার নাম হয়ে গেছে জয় বাংলা। কিন্তু জয় বাংলা বেসিক্যালি না, এটা হচ্ছে তোমার কি যেন নামটা আমি ভুলে গেলাম। ওই তো কনজাংটিভাইটিস, হ্যাঁ বেসিক্যালি হ্যাঁ চোখের ইনফেকশন। চোখের ইনফেকশন, হ্যাঁ ওটা দেশি ভাষায় জয় বাংলা। কিন্তু জয় বাংলাটা অন্যান্য স্টেটেও খুব পপুলার, জানিস তো? বিহার, ইউপি এইসব দিকেও লোকে জয় বাংলা বলে। আচ্ছা চলো। বলার তো কারণ বলেই দিলি। হ্যাঁ সিরিয়াসলি, রাঁচিতে মাসি থাকে। তো মাসিরাও ওখানে, বিহারিরাও ওখানে বলে বিহারি ঝাড়খণ্ডীরা জয় বাংলা। চোখে ইনফেকশন হলে নন বাংলার বেঙ্গলি। জয় চাই, হ্যাঁ কি হয়েছে? বাংলার জয়। বাংলার টিভিতে জয়। বললো না যে বাংলার জয় আচ্ছা চল স্ক্রিনটা শেয়ার করি। কিরে কাদের কাদের হার্ট অ্যাটাক হলো? মার্কেট একটু পড়েছে, কারেকশন হয়েছে একটু। ভালোই হয়েছে স্যার, টেস্টেবল ওভার। ভালো হয়েছে। একটু একটু হার্ট অ্যাটাক হওয়া ভালো মাঝে মাঝে। সবসময় बाढ़ले ভালো লাগে না, একটু কমলেও ভালো লাগে। अच्छा। कल एक इंटरव्यू देख रहे थे सर, मतलब देख नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे। मोतीलाल ओसवाल का जो को फाउंडर है ना सर, रामदेव अग्रवाल, नाम तो सुना ही होगा। तो रामदेव अग्रवाल का एक इंटरव्यू पढ़ रहे थे। तो वहां पर रामदेव अग्रवाल उनको काफी सारा सवाल कर रहे हैं। हाँ हाँ। দেখাচ্ছিল স্যার, ইউটিউবে দেখছি। नहीं मैं यूट्यूब में नहीं देख रहा था, मैं बस एक छोटा सा न्यूज आया था उसी से देख रहा था। मैं पढ़ लेता हूँ यार, इतना वीडियो देखने का मतलब मुश्किल हो जाता है। जो भी हो, चाहे कहीं पर भी। तो वहां पर रामदेव अग्रवाल को कोई सवाल पूछा था रिपोर्टर ने, तो रिपोर्टर का तो जवाब था उस पर, रामदेव अग्रवाल को उन्होंने पूछा कि आप मार्केट में ये जो करेंटली जो बहुत ज्यादा लॉस वगैरह हो रहा है लोगों का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो रामदेव अग्रवाल बोलता है कि मैं उस स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ जिस स्कूल में 1 घंटे में करोड़पति बनता है। उस स्कूल से मैं तो नहीं पढ़ के आया। मतलब 1 घंटे में करोड़पति बनने के चक्कर में लोगों का हालत ऐसे खराब हो रहा है। मतलब लोगों को पहले क्या था कि भाई कम से कम 1 साल में पैसा बढ़ जाए मेरा, उसके बाद धीरे धीरे 6 महीना, 3 महीना में पैसा बढ़ जाए, 1 महीना, 1 वीक, 2 वीक्स तो भी फिर भी समझ में आता है। मतलब बाई टुडे सेल टुमारो करके भी पैसा बढ़ जाए। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि लोगों को 1 घंटे में पैसा बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1 घंटे में मार्केट क्या होगा और क्यों होगा? तो रामदेव अग्रवाल बोलता है कि इसका तो इसमें मेरा स्कूलिंग नहीं है। जो भी हो, एक ट्रू बात कहा है उन्होंने। सीरियसली ये जो 1 आवर में मार्केट में क्या होगा, इसका प्रॉपर रीजन बताना कि अल्टीमेटली, हाँ कैंडल फिक्स्ड बहुत कुछ बताता है, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट बहुत कुछ बताता है, लेकिन
फिर भी सीरियसली किसी को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो जो भी हो, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं उनका बात कहा सर। मुझे मुझे तो लगता है कि इसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्किल्स तो है ही, बट ये जो 1 घंटे का खेल है ना, ये थोड़ा चिंताजनक हो जाता है। मैं तो नॉर्मली मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये घंटा का खेल ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सब स्विंग ट्रेडिंग कैलकुलेट करते गए, हाँ, सब कैलकुलेट কি বুঝতে পারছি না কথাটা। সব ক্যালকুলেটের জন্য স্যার ঢুকছে। अच्छा अच्छा चल ठीक है, हम लोग लीगल मैटर में आ जाते हैं। चलो मार्केट की बात करेंगे सर, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा ना, थोड़ा सा मैं लीगल बातों में उलझ गए हम लोग, तो उसको थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव मॉड्यूल के अंदर, इसका नाम है सर लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जिसको मैं कल भी बताना थोड़ा स्टार्ट किया था कि मार्केट का जो लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स है, इसमें दो लॉ बहुत पॉपुलर है। एक लॉ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम पे जाना जाता है सर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, और दूसरा एक लॉ है जो बाद में आया सर, सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट তো বলছি যে 1992। তোমার পেজটা চেঞ্জ হয়নি মনে पेज चेंज হয়নি কেন? পেজ তো চেঞ্জ হয়ে গেছে, তো নেটওয়ার্ক ইস্যু হবে তাই। এই সবাইকে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? কি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে একটু বলবি আমাকে? সিকিউরিটিজ হ্যাঁ ওই কন্ট্রাক্ট তো রেগুলেশন। সিকিউরিটি কন্ট্রাক্ট রেগুলেশন হ্যাঁ দেখাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার এলো হ্যাঁ এবার স্যার। এলো ঠিক আছে। তোর নেটওয়ার্ক সমস্যা, আমাকে বিরক্ত করছিস হ্যাঁ? अच्छा देख, the rules and regulations framed there under and the other rules and bylaws of the stock exchange, ये सभी चीजें मैं कल थोड़ा इंट्रोडक्शन दे भी दिया था आप लोगों को। उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, जो इंडिया में स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट को मैनेज करने के लिए 1956 में आया था। इसके अंदर काफी सारा डेफिनेशंस दिया गया है सर, डेफिनेशंस इन द सेंस कि क्या है क्यों है इसके बारे में। जैसे कल मैं आप लोगों को हल्का आइडिया दिया था कि शेयर क्या है, स्टॉक क्या है, बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है, डिवेंचर स्टॉक क्या है, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक नेचर क्या है, ये सब के बारे में ना, ये सब सिक्योरिटी है, तभी तो नाम है मार्केट का सिक्योरिटी मार्केट, है ना। और इसका सिक्योरिटी देने का भी काम सेबी करता है, ताकि पब्लिक जो पैसा दे रहा है ना, वो थोड़ा बिलीव के साथ अपना पैसा मार्केट में दे पाए, क्योंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पहला बात है कि लोगों को नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि लोगों को नॉलेज होने के साथ साथ भरोसा भी होना चाहिए कि मैं, चाहे नाम कुछ भी हो, नाम शेयर हो, नाम बॉन्ड हो, नाम डिवेंचर हो, नाम डिवेंचर स्टॉक हो, कुछ भी नाम से पुकारो, नाम डेरिवेटिव हो, बट आपका पैसा, आप जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करोगे एज ए कैपिटल, एज ए ट्रेडर, ठीक है, एज ए कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर, आप कुछ भी नाम पे मार्केट में डालो, बट आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी तो चाहिए ना सर, और ये सिक्योरिटी लॉ देता है। इसीलिए देश में लॉ जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर लॉ सही तरह से नहीं रहेगा और लॉ का प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, मतलब नॉट ओनली कि इंडियन मार्केट, आप लोगों को पता होगा कि इंडियन मार्केट में फॉरेन पैसा भी बहुत आता है ना, जिसको हम लोग जब मार्केट में अचानक हम लोग देखते हैं कि बहुत मार्केट में ग्रोथ आता है। अब देखना कि अगर अचानक से आपको बहुत जोर का मूवमेंट दिखता है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया क्लास में कि कहीं ना कहीं उसमें एफआईआई का एक बहुत बड़ा खेल होता है ना सर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसके संग संग डीआईआई भी पीछे पीछे आते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसके साथ पीछे हम लोग जैसे लोग जो रिटेल वाले हैं वो भी आते हैं। तो ये जो एफआईआई, मैं एफआईआई के बारे में ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि विदेश का पैसा जब इंडिया में आता है ना, तो बहुत जोर का मार्केट को कॉन्फिडेंस मिलता है, और उसी कॉन्फिडेंस में मार्केट ना छलांग मारता है। हो सकता है कि वो सपोर्ट लेवल में काफी दिनों से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही एफआईआई का पैसा आ जाएगा ना, पहले तो गैप अप ओपनिंग देता है, फिर एकदम एक लंबा
रेस का घोड़ा बन जाता है। तो इस तरह से मार्केट में एक ट्रेंड क्रिएट होता है और फिर उसको फॉलो भी करता है DII। DII क्या करता है, बाद में जब मार्केट गिरता है ना, FII सेल करता है, DII बाई करता है, FII सेल करता है, DII बाई करता है, फिर DII के बाइंग के कारण मार्केट में वापस आपको ट्रेंड चेंज को, मतलब थोड़ा सा करेक्शन के बाद वापस आपको मार्केट में ट्रेंड वही नजर आता है। सर कहना क्या चाहते हो? सर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मार्केट में कैंडल का आना जाना, ये जो ट्रेंड सेटअप होना, ये सभी चीजें डिपेंड करता है कि मार्केट का रेगुलेशन या लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसके ऊपर काफी दिनों से काम चल रहा है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ सही हो गया, कोशिश तो जारी है सर। जैसे कल मैंने आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के बारे में भी कहा, है ना। जैसे डेरिवेटिव के ऊपर भी मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया। जैसे आप देखो यहाँ पर, आप लोग डेरिवेटिव भी पढ़ाई कर रहे हो ना, ये इक्विटी डेरिवेटिव है, इसके अलावा करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, ये भी आप लोगों को आगे आगे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। करेंसी, कमोडिटी, ये सब भी आप लोगों को बिल्कुल करना चाहिए सर। तो डेरिवेटिव को क्या डिफाइन करता है, देखो, द सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड माने बेसिकली जो मॉर्गेज रहता है जिसका, माने जो सिक्योरिटी मॉर्गेज होता है, इन द सेंस आप लोगों को जैसे बैंक से सिक्योर्ड लोन होता है ना सर, एक सिक्योर्ड लोन भी होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन भी होता है। सिक्योर्ड लोन माने उसके अगेंस्ट में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी है। सिक्योर्ड लोन में कुछ कोलेटरल देके आपको लोन मिलता है। से फॉर एग्जांपल आपको बैंक लोन दे रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई आपका घर का पेपर जो है, घर का पेपर बैंक के पास जमा करो। आपका लैंड है तो वो लैंड का पेपर बैंक के पास जमा करो, बदले में आप 50 लाख का, 40 लाख का, 30 लाख का लोन लेके जाओ। तो ये सिक्योर्ड लोन होते हैं। सिमिलरली ये बैंक का जो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, इसी तरह से मार्केट में डिवेंचर या फिर बॉन्ड, इसका भी ना सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कॉन्सेप्ट रहता है। इसको ना चार्ज भी बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में, सब यहाँ पर शायद आपको नहीं मिलेगा। चार्ज क्रिएट करना बोलता है। सपोज एक कंपनी को आप लोन दे रहे हो, सपोज एक कंपनी को कोई पब्लिक लोन दे रहा है, तो कंपनी के लिए वो क्या होता है, कंपनी डिवेंचर इशू करता है। ध्यान से सुनना सर, कंपनी करता है डिवेंचर इशू। कोई एक्स लिमिटेड है, जैसे आजकल एक कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा था रिसेंटली, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इंडिया बुल हाउसिंग का काफी दिनों से कुछ ट्रांचेस चल रहा था। इंडिया बुल हाउसिंग का देखता हूँ सर, एडवर्टाइजमेंट तो कुछ दिन मैंने देखा, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये रहा आई थिंक, NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। हाँ, ये देखिए सर, आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट डेट क्या था, प्रोस्पेक्टस जून 30 2023। इसके अंदर ना आपको पूरा, NCD का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मानी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है, इनको चाहिए था पैसा, ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है सर, लेकिन ये ना लोन के थ्रू से अपना कैपिटल रेज करना चाहता है। तो ये NCD क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर माने जो डिवेंचर बाद में इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डिवेंचर ही रहेगा। और उसके साथ इसमें सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रोस्पेक्टस पढ़ के देख सकते हो कि कंपनी जब इशू कर रहा है तो आपको बदले में, आप कंपनी को लोन देते हो ना, तो एज ए इन्वेस्टर आप जब लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या कंपनी आपके अगेंस्ट में कोई चार्ज क्रिएट कर रहा है, आपके फेवर में कोई चार्ज क्रिएट कर रहा है, माने अगर फ्यूचर में कंपनी फेलियर भी हो जाता है, तो कंपनी उसके बदले आपको क्या सपोर्ट देगा, उसी के बारे में बात है सर। सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for difference of any other form of security, a contract which derive its value from the price or index of price or underlying securities। माने डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये मैथमेटिकल जो डेरिवेटिव वर्ड है ना, मैथ्स में डेरिवेटिव वर्ड बहुत चलता है,
dy बाई dx का क्वेश्चंस वगैरह करते हैं लोग। सर हम लोगों को dy dx पे नहीं जाना है, मैं तो जस्ट आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव जो मैथ्स में भी होता है उसका पर्पस यही है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से एक न्यू सिचुएशंस में जाना। माने जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास है, उसके बेसिस में आप एक न्यू मूवमेंट उसके ऊपर डिसाइड करो। जैसे आप लोग ये करते रहते हो, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप लोग करते रहते हो। जैसे एनएससी में मैं एक बार ऑप्शन चेन में भी आपको दिखा देता हूँ। जब हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन में आपके सामने मेन अंडरलाइन होता है निफ्टी, है ना, या फिर कोई इंडिविजुअल स्टॉक भी हो सकता है। तो ये जो निफ्टी का 19,570 जो इसका करंट वैल्यूएशन है, दिस इज द बेस एसेट, है ना, जिसके ऊपर बेस करके इसको अंडरलाइन इंडेक्स भी कह रहे हैं। तो अंडरलाइन के ऊपर बेस करके आप निफ्टी के फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो, आप उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो, तब आपके सामने अलग अलग स्ट्राइक लेवल है और उसके ऊपर बेस करके आईटीएम ओटीएम एटीएम का कॉन्सेप्ट है, जो मैं फिर से एक बार डिटेल्स पढ़ाऊंगा सर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप करेंटली किसी एसेट क्लास के ऊपर बेस करके उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो क्या कर रहे हो आप, डिराइव कर रहे हो, है ना। इसीलिए बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। जैसे आप रिलायंस के करंट मार्केट के बेसिस में रिलायंस के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, है ना। रिलायंस का या कोई भी स्टॉक, रिलायंस हो, इंफोसिस हो, टीसीएस हो, पेटीएम हो, जो आपको पसंद है, आप उसके करंट प्राइस के ऊपर बेस करके उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हो। दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। समथिंग न्यू जो डिराइव होता है, समथिंग न्यू जो किसी बेस के ऊपर डिपेंड करके डिराइव करते हो आप। जैसे स्टॉक मार्केट चलता है ऐसा कमोडिटी मार्केट भी चलता है। कमोडिटी मार्केट को कमोडिटी डेरिवेटिव बोला जाता है। इसके ऊपर अलग से एनआईएसएम का मॉड्यूल भी है, लाइसेंस भी है और डिटेल्स नॉलेज का भी एरिया है। आप लोगों को कहाँ लेके जाना चाहिए, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नाम तो सुना होगा सभी ने। हाँ सर, इंडिया में जो 7 एक्सचेंज चलता है उसमें से एक है सर ये वाला। टोटल इंडिया में करेंटली कितना एक्टिव से एक्सचेंज है, एक्टिव एक्सचेंज इंडिया में करेंटली, हेलो, क्या सर बोलो, इंडिया में करेंटली कितना एक्टिव से एक्सचेंज है। তিনটে নাকি? ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ আছে, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ, আর হচ্ছে তোমার বোম্বে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ। ক্যালকাটাটা আর ইএনআইএস নাকি অ্যাক্টিভ আছে? হ্যাঁ ক্যালকাটা active আছে। না, এখানে একটা ছোট্ট ব্যাপার আছে। ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ মানে ভ্যালিড রেকগনিশন আছে, বাট ট্রেডিং হয় না। ये देख ले डिटेल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, इसमें आपको 7 एक्सचेंज मिलेगा। ध्यान से देखो सर, 7 है, ओनली 7, जिसमें बीएसई है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो देयर, जहां पर आप लोग एग्जाम दे के आए सर, जो लोग एग्जाम अभी आजकल दे रहे हो, लियोन्स रेंज, डालहौजी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये भी परमानेंट है, बट सर इसमें कोई सेगमेंट परमिशन नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, मे बी फ्यूचर प्लान हो सकता है सेबी का। बट अगर आप बीएसई में देखो तो बीएसई किस किस सेगमेंट में काम करते हैं, इक्विटी में, इक्विटी डेरिवेटिव में, करेंसी डेरिवेटिव इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव एंड डेब्ट, ये बीएसई का हो गया। सिमिलरली आपको एनएससी भी दिख जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, डेब्ट, एनएससी के पास भी परमिशन है। इसके साथ साथ एक है सर बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज के नाम पे, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी एंड डेब्ट। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज दैट इज एमसीएक्स, जहाँ पे सिर्फ कमोडिटी डेरिवेटिव होता है, एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, जहाँ पर भी सिर्फ कमोडिटी का काम होता है। इसके अलावा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी परमानेंट नेचर का है, बट अभी भी इसमें कोई एक्टिव ट्रेडिंग या सेगमेंट अवेलेबल नहीं है। कुल मिला के 7। पुराने जमाने में भारत में
मतलब 2013, 14, 15 ऑनवर्ड्स, 18 तक तो काफी सारा और भी था, बट इतना सारा एक्सचेंज को बंद कर दिया गया। मैंने बेसिकली ग्रांटेड एग्जिट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी सब सेंट्रलाइज कर दिया। इतना सारा डिसेंट्रलाइज करके गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा था, और आप लोग जानते हो मार्केट में कितना मतलब एक्टिवली देखना पड़ता है, तो इतना सारा एक्सचेंज देखना मुश्किल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ना ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा, सौराष्ट्र, हैदराबाद, कोयम्बाटूर, कोचीन, बैंगलोर, लुधियाना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जयपुर, पुणे, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्टेट में था, सब बंद हो गया। तो करेंटली एक्टिव है 7, उसमें से सभी जगह में ट्रेडिंग, এটা কি है दादा? ओटीपी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द OTC, काउंटर। ओवर द काउंटर, एग्जैक्ट, ठीक है, ये सब बंद कर दिया सर। अभी ये सब अवेलेबल नहीं है। ये मैंने सेबी के साइड से ही आपको बताया। अच्छा, मैं कमोडिटी के बारे में हल्का सा आइडिया दे रहा था, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगा, बिकॉज कमोडिटी इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डिटेल्स एजुकेशन नाउ। तो आप अगर कमोडिटी में जाओगे, आप यहाँ पर ठीक जिस तरह का आप इक्विटी में चेक करते हो, उसी तरह से कमोडिटी भी अलग अलग ट्रेडिंग होता है। इसमें प्रोडक्ट में जाओगे, उसका भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कमोडिटी के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ये देख सकते हैं आप। मेन क्या है, बुलियन है, बेस मेटल है, एनर्जी है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, मेनली ये सब प्रोडक्ट के ऊपर डेरिवेटिव होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी आपको सिमिलरली एक सर्टेन अमाउंट में ऑप्शंस भी खेला जाता है, फ्यूचर में भी खेला जाता है, ठीक जैसे इक्विटी मार्केट में भी चलता है उसी तरह का, बट यहाँ एसेट क्लास अलग है। आप देख सकते हो इंडेक्स वैल्यूएशंस भी दिख रहा है आपको, यहाँ एसेट क्लास अलग है, इसका नेचर अलग है ऑब्वियसली। लेकिन एक बात है, अगर किसी को, एक चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर किसी को इकोनॉमी को एकदम कोर लेवल से जानना है, तो फिर उनको कमोडिटी मार्केट का नॉलेज लेने से काफी हेल्प होगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो इकोनॉमी है, जो भी वर्ल्ड हम लोग के आसपास जो भी इकोनॉमी हम लोग देखते हैं, ये सभी चीज ना कमोडिटी पे डिपेंड करके ही होता है। जितना भी बड़ा कंपनी क्यों ना बने, उसमें या तो गोल्ड का काम होगा, सिल्वर का होगा, क्रूड ऑयल तो बहुत फेमस है, नेचुरल गैस है, लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इसी के बेसिस में ही तो मार्केट बनता है, इसी के बेसिस में तो इंडस्ट्री बनता है। तो अगर आप इस सब चीजों के बारे में नॉलेज रखते होगे ना, तो आपको ना मार्केट का एक बड़ा आइडिया होगा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड सप्लाई चल रहा है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बाकी मसाला का भी एक मार्केट होता है सर, ठीक है, स्पाइसेस उसका भी है, सीमेंट का भी एक चलता है, मार्केट वॉच में जाके आप चेक कर सकते हो। डिटेल्स डिस्कशन अगर कभी हम लोग कम्युनिटी क्लास करेंगे ना, तो उसमें बात कर लेंगे सर। ये भी एक अपना अपने अंदर एक जगह है सर ये, ठीक है सर। अच्छा, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव, अगर किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डेरिवेटिव के नाम से डिक्लेयर करते हैं तो उसे भी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। सेक्शन 18A provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, contract in derivative shall be legal and valid if such contracts are traded on recognized stock exchange। कोई पर्टिकुलर डेरिवेटिव को हम लोग तभी वैलिड बोलेंगे, लीगल बोलेंगे, जब वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। आपको पता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज करेंटली क्या है? सेटल्ड ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। माने ऐसा नहीं कि मन कोई भी किसी के पास पैसा हो तो वो डेरिवेटिव सेगमेंट रेडी करके और डेरिवेटिव में लोगों को खिला रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। जो एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड होगा, जो एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के थ्रू से सेटल हो सकता है, इसी को वैलिड माना जा सकता है। बस सही बात कहा है, वो भी कहाँ बोला, सेक्शन 18A में बोला। थोड़ा बहुत सेक्शन का नॉलेज रख सकते हो। ज्यादातर जो लोग CS का पढ़ाई करते हैं, CMA का पढ़ाई करते हैं, उनको ये सब सेक्शंस वगैरह में काफी ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में लिखने के टाइम पे। आप लोग के इसमें डेरिवेटिव एग्जाम में इतना सेक्शन को लेके सवाल का जगह नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए, पर फिर भी पता नहीं सर कब क्या सवाल कर ले। अच्छा देखो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अब ये सेबी एक्ट जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद इंडिया में डेवलप हुआ है, जिसमें सेबी एक्ट 1992 प्रोवाइड्स क्या क्या काम के लिए आया है सर? जैसे गाना है ना सर, दुनिया में आए हो तो, ठीक है, तो ऐसा ही सेबी का काम क्या है कि दुनिया में आए हो तो कंपनी को देखभाल कर लो। पहले तो सिर्फ सेबी के पास ना वॉच डॉग वाला पावर था,
वॉच डॉग मैंने वो सिर्फ देखता था, कुछ बोल नहीं पाता था। बट आजकल सर सेबी के पास पावर बहुत बड़ा हो गया, मतलब देख भी सकता है, एक्शन भी ले सकता है। तो सेबी एक्ट 1992 provides for establishment of Security and Exchange Board of India with the statutory power, statutory मैंने एकदम लीगल, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड इन सिक्योरिटीज। बेसिकली ये इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन के लिए ही मार्केट में आया है सर। सेबी ना होता ना तो इन्वेस्टर को मार्केट में कॉन्फिडेंस ना मिलता, और वो कभी भी मार्केट में आने के लिए रेडी नहीं होता। सिर्फ अल्ट्रा रिस्क टेकर जो है वही लोग आते हैं जिनका बहुत पैसा होगा, या फिर जिनको पैसा गंवाने में चिंता नहीं होता है। लेकिन सर आजकल मार्केट में रिस्क एवर्ड्स वाले लोग भी बहुत आ रहे हैं, है ना, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क लेगा बट ज्यादा रिस्क को कभी नहीं, क्योंकि सबका हार्ड अर्न मनी है, और हार्ड अर्निंग वाले लोग ना, जहां पर लीगल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है उधर जाना पसंद नहीं करता। सेबी के रहते हुए भी मार्केट में घोटाला हो जाता है। तो सोचो अगर सेबी जैसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ना होता तो क्या होता। आप लोग কি কালকে তোমার একটা কেস বেরিয়েছিল, হিরো হিরো মোটোকপের যে তোমার এমডি রয়েছে, ঠিক আছে, তো ওরা একটা কি কেস করেছিল তোমার সেবির কাছে, তাই জন্য নাকি কালকে ইডি পাঠিয়েছে। হিরো ইডি মোটোকপের যে পাঠিয়েছে? এমডি রয়েছে, ইডি গেছে কালকে। আচ্ছা কালকে ওই জন্য 4% ফল করে গেছে, আজকে আমি দেখিনি কি হয়েছে। अच्छा। अरे तुम लोग सत्यम स्कैंडल के बारे में तो सुने होंगे, हाँ? है सर, है। वेरी पॉपुलर, पॉपुलर बोलना नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी इनफेमस स्कैंडल सर। तो एक्चुअली ये जो सत्यम स्कैंडल है, ये नॉट जस्ट कि मैं स्टॉक मार्केट में बात करूंगा, ये तो मैं लॉ में भी बात करता हूँ, ऑडिट में भी बात करता हूँ। लॉ ऑडिट के क्लास में भी, अकाउंट्स में भी जोर का चर्चा हो जाता है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ कि इस केस में आप लोगों को शायद पता ही होगा क्योंकि पुराना केस है। इस केस में एक्चुअली सत्यम कंप्यूटर जो है, जो एक्चुअली आज के जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस जैसे कंपनी है ना, उसी तरह का एक कंपनी ये भी बना था। अच्छा काम कर रहा था, हैदराबाद बेस्ड कंपनी था, अपने आप को काफी बेहतर तरीके से बना रहा था। बाद में टेक महिंद्रा ने इसको बाय कर लिया सर, महिंद्रा सत्यम बन के बाद में इसको एक्वायर कर लिया। बट इसने क्या किया था सर, ये ना अपना प्रॉफिट कुक किया था, जिसमें ऑडिटर भी शामिल थे। एक्चुअली ऑडिटर को सब पता होता है ना, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में किसी को नॉलेज हो ना हो, ऑडिटर को होता है। तो पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर था, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम पीडब्ल्यूसी। तो पीडब्ल्यूसी को भी इंडिया में बाद में बैन किया गया था ऑडिट करने से, और सारे के सारे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड थे, सबको जेल भी हुआ, लाइसेंस भी गया सर। ये देख सकते हैं आप। प्राइस वाटर हाउस, द इंडियन डिवीजन ऑफ प्राइस वाटर हाउस कूपर्स announced that it is in reliance on potentially false information provided by the management of Satyam may have rendered this audit report inaccurate and unreliable। मतलब खेल चल रहा था, लेकिन इनअप्रोप्रिएट दे रहा है। आपको ये भी समझना चाहिए ना कि इंफॉर्मेशन इनअप्रोप्रिएट दे रहा है। ऑडिटर होना इतना आसान चीज है नहीं सर। नॉलेज लेवल एज वेल एज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, तब जाके एक प्रॉपर ऑडिटर बना जाता है। आजकल तो सर सीए इंस्टीट्यूट वगैरह मतलब एथिक्स में काफी फोकस कर रहे हैं कि एथिक्स सीखो, एथिक्स सीखो, एथिकल स्टैंडर्ड भी बना रहा है। ठीक है, एथिक्स क्या है? ऐसे तो एथिक्स कोई सिखाने वाला चीज है नहीं, मजा का बात यही है सर, ये कल्चर का पार्ट होता है। बट लोगों को किताब पढ़ा पढ़ा के एथिक्स सिखाया जाएगा, ये भी दिन देखना पड़ रहा है सर। क्योंकि एथिक्स एक्चुअली एक मोरल कॉन्सेप्ट है, और ये सोसाइटी के कल्चर से आता है। और हम लोग जब अपने कल्चर से दूर भाग रहे हैं ना, यही मुश्किल बढ़ा रहे हैं। कल्चर समझते हो ना, जिसको बोलते हैं संस्कृति। और हम लोग जितना अपने कल्चर से दूर भागेंगे, दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और अपने कल्चर को ही गाली देते रहेंगे, तो क्या होगा ना, आपका एथिक्स तो छोड़ो, आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर का ना उधर का, और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार बन जाएंगे। मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर का बात छोड़ो, उनको तो सिर्फ अपना देखना है। लेकिन आम आदमी अपने कल्चर से क्यों भाग रहा है दूर? हाँ,
अपने कल्चर के बारे में ना नॉलेज है, ना जानना चाहता है। सर यहाँ पर कल्चर का क्यों बात कर रहे हैं? सर इसीलिए कल्चर का बात कर रहे हैं क्योंकि कल्चर ही एक चीज है जो एक्चुअली एथिक्स सिखाता है। आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब लगेगा, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, इंडोनेशिया एक देश है सर। नाम सुने होंगे इंडोनेशिया का आप? हाँ হ্যাঁ স্যার ওয়ার্ল্ডের সবথেকে বড় মুসলিম পপুলেট কান্ট্রি। एग्जैक्टली सर, इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है। इंडोनेशिया का जो यार, हाँ बोलो। हिंदू ওখানে রামায়ণ टेम्पल टेम्पल हाँ सर एग्जैक्टली मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि इंडोनेशियंस का जो लोग है ना, इनका जो एक्चुअल कल्चर है वो हिंदुइज्म कल्चर है। लेकिन ये यहाँ का लोग अभी क्या है, यहाँ का लोग अभी मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते हैं। लेकिन जब इनको पूछो कि भाई तुम्हारा दादा परदादा कौन है, तुम्हारा कल्चर क्या है, तो ये बोलते हैं कि हिंदुइज्म हमारा कल्चर है और यही हमारा संस्कृति है। इसीलिए इनका एयरलाइंस भी गरुड़ा नाम से चलता है। इनके घर में आज भी, इनके घर मतलब वहाँ का जो रेडियो स्टेशन है ना, वहाँ पर अभी भी रेगुलर बेसिस में रामायण का शो होता है। घर घर में रामायण महाभारत का रेगुलर डिस्कशन होता है। इसके साथ रिलीजियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये कल्चर से डिपेंड करता है। और हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, किसी को तुम रामायण महाभारत का बात करो तो वो हिंदू मुस्लिम करता है। बात हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का है ही नहीं, बात कल्चर का है। पूर्वज का हमारे जो ओल्ड जनरेशन है ये हमें क्या देके गया है, चाहे आप किसी भी रिलीजियन का या फेथ का अभी फॉलोअर क्यों ना हो, डजेंट मैटर। लेकिन यही चीज सीखना चाहिए इंडोनेशिया से, क्योंकि इनके रग रग में इनका कल्चर है और ये आज भी फॉलो करता है, आज भी फॉलो करता है। ये सब बातें लोगों को बताया नहीं जाता, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन बात समझने लायक है, कोशिश करना कभी डिटेल्स में जाने का। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेबी जो है सर, इन्होंने, ये मैं सत्यम कंप्यूटर्स का बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सत्यम कंप्यूटर्स काफी बड़ा घोटाला कर दिया सर, अपना प्रॉफिट को कुक कर दिया था सर। कुकिंग माने क्या है कि जितना प्रॉफिट है नहीं, इससे ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा, और बहुत ही कम दिनों में वो दुनिया को ये बताना चाह रहा था कि हम लोग ज्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गए, और इन्वेस्टर का अट्रैक्शन लेना चाह रहा है। आप चाहो हो, ऑडिटर का रोल बहुत बड़ा था, इसीलिए मैंने ऑडिटर का भी बात किया। इनिशियल कन्फेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में आप देख सकते हो करीब 7,000 करोड़ का अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हुआ था सर। इसका जो चेयरमैन या ओनर था, बायराजू रामलिंगम राजू, resigned confessing that he had manipulated the accounts of 7,000 crore in several forms. The global corporate community was said to be shocked and scandalized. अब बोलो, सेबी के रहते हुए, सेबी के रहते हुए अगर इस तरह का स्कैंडल होगा तो दुनिया का भरोसा उठ जाएगा सर। लोग क्यों पैसा डालेगा मार्केट में? क्योंकि एक मार्केट को तो जुआ का नाम ऑलरेडी दिया हुआ ही है ना। तो मार्केट में अगर बस एक दो, अभी फिर भी थोड़ा सा लोग पहले से ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं, मार्केट के बारे में लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा बदला है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी मुश्किल है। जितना बदला है ना वो सिर्फ यूट्यूब नॉलेज का बदला हुआ है। यूट्यूब नॉलेज का भी मुश्किल होता है सर। आई एम नॉट अगेंस्ट द यूट्यूब, बट यूट्यूब में पूरा बात थोड़ी होता है सर। और अगर कोई पूरा बात करता भी है, कितना लोग है जो पूरा बात सुनने वाला होता है? सब तो यूट्यूब शॉर्ट्स का नॉलेज गैदर है, ठीक है। वो भी कौन सा नॉलेज, कि अगर कोई यूट्यूबर ने किसी भी तरह का ट्रेड में कोई कैंडल स्टिक के थ्रू से या फिर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन थ्रू से ये बता रहा है कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, आप भी करोगे, ठीक है, उसमें ज्यादा लोग व्यूवर्स वगैरह होता है, उसमें भी मैनिपुलेशन टेक्निक चलता है, उसमें भी मैनिपुलेटिव टेक्निक चलता है। अब मुश्किल क्या हो रहा है ना, कोई डिटेल्स नॉलेज ले नहीं रहा है। यूट्यूब शॉर्ट सुन सुन के या यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियो देख देख के अपने आप को बहुत ज्यादा मान रहा है, तो वो मार्केट को ना अंदर से समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कितना बड़ा समुद्र है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि यूट्यूब में बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज है, लेकिन मुश्किल होता है कि नॉलेज है और नॉलेज लेने में फर्क होता है, ठीक है। मैंने क्या है ना,
कि मतलब वो एक बात को बोलता है सर कि लेने के लिए भी उतना दम होना चाहिए, वही थोड़ा सा गैप बन रहा है सर, क्योंकि डिटेल्स नॉलेज में लोग थोड़ा सा लैग हो रहा है। आगे देखें सर, तो मैं क्यों ये सेबी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब सेबी को पता चला और सीबीआई इस मैटर को टूक ओवर किया, सेबी को तो पता चला ही था, फिर सीबीआई बीच में आया और फिर इस केस को अंदर से पूरा डिटेल्स में छेड़छाड़ किया गया और फिर चार्जशीट फाइल हुआ, अभी तो जेल में है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूँ? मैं इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ क्योंकि अब सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसलिए आया है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, promoting the development of security market and regulating the security market। तुम ना होते तो क्या होता? अच्छा इसके अंदर भी अगर घोटाला हो जाए, जैसे कि ये देखो, अरे किसको पता होगा, रिसेंट नहीं 2013 से लेके 16 तक हमारे देश में सेबी का एक चेयरमैन थे, कौन थे, उसका नाम क्या है, सेबी नहीं एनएसी का, एनएसी चेयरमैन क्या नाम था, नाम बताओ ना, कोई तो बता सकते हो, मैं क्लास में बार बार डिस्कस किया। अरे एक लेडी है, क्या घोटाला किया सर, इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा था, कोई पहाड़ी चित्रा रामक हाँ चित्रा रामाकृष्णन, थैंक यू सर, चित्रा रामाकृष्णन, ठीक है, अभी अभी जेल में है, बाबा ठीक है। हाँ बोलो। पहाड़ी बाबर खेला वही पहाड़ी बाबा, कौन है भाई पहाड़ी बाबा? हाँ হিমালয়ে বসে স্টক টিপস দিচ্ছিল हिमालय में बैठ के स्टॉक का टिप्स दे रहा था। हाँ ये सब लोगों को, मतलब गवर्नमेंट में बैठा हुआ लोग कैसे इनको सहन लेता है सर? गलत लोग जब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग बोलते हैं एडुकेटेड लोग होना चाहिए, हाँ तो ये भी तो एडुकेटेड ही है, मूर्ख तो है नहीं, काफी पढ़ा लिखा है तभी ऐसे पावर इनको मिला था। प्रॉब्लम वही है, पढ़ा लिखा लोग ही दुनिया को मैनिपुलेट कर लेता है। लोग सोचते हैं कि है तो शिक्षित हो, अरे भाई शिक्षितों का बात नहीं है, बोला ना सर, एथिक्स जो कल्चर से बिलोंग करता है, हम लोग अपने कल्चर भूल रहे थे, एथिक्स भी भूल रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हार्ड को ट्रूथ बता रहा हूँ, कभी रियलाइज करना बैठे बैठे। স্যার এই জন্য তো মানে ইন্ডিয়াতে টাকা কামানো এত ডিফিকাল্ট মানে ম্যাক্সিমাম প্রমোটারই চোর হয় ठीक है। अब ये परसेप्शन बहुत मुश्किल कर रहा है सर, यही परसेप्शन मुश्किल कर रहा है, मतलब तुमको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो सिचुएशंस एक आध खराब जो भी बनता है ना इनके कारण, और ये देखो ये पूरा लीड कर रहा था, पूरा 2013 से लेके 16 तक पूरा एनएसी को लीड कर रहा था, अब लोग कैसे भरोसा करेगा? इवन रामकृष्णा spent 2 years at the SEBI, after which she returned to IDBI in April 13. She succeeded Ravi Narayan, became the managing director of CEO of NSE। हिमालयन योगी को इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, कोई हिमालयन योगी, कौन है भाई योगी? कोई नहीं था सर, ये सब बना हुआ कहानी था, कुछ भी जब सामने कोई आंसर नहीं आ रहा था ना उसके पास, तब ये सब हिमालयन योगी वाला कहानी बना रहा था। February 2022 में SEBI said that for the past 20 years she had been allowing an unidentified Himalayan yogi to advise her on important decisions, and the case was investigated by CBI। She leaked the key business information pertaining to day-to-day operations। She was arrested by the CBI in 7 March 2022। अभी केस चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है, उसका प्रॉपर्टी तो सीज किया गया है, आगे देखो और भी क्या होता है। तो बेसिकली ये चीज अच्छा है ना सर कि इसका भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा पॉलिटिकल लीडर्स है। ऐसे तो हमारे देश में पॉलिटिकल लीडर्स को लेके हम लोग उतना खुश नहीं होते, बट देखो आप ये इंसान पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रियलाइज करते हो, मतलब ढीठ ना बनो, कोशिश करो कि, मैं किसी आइडियोलॉजी का बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट आप जो भी हो डजेंट मैटर, बट आप देखो कि ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला आइडियोलॉजी किसके पास है और किनके पास ज्यादातर लोग आपको ठीक ठाक मिल रहा है, ज्यादातर लोग। देखो सर इतना बड़ा देश है, एक आध खराब पॉलिटिशियंस मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ देश में ना कोरप्टेड पॉलिटिशियंस के पीछे भागने वाले लोग बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद कोरप्टेड है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखो कि किसके पास
सच ऑनेस्टी है, जो ऑनेस्टी ज्यादा करेगा उसको चूज करना चाहिए। बट ये प्रॉब्लम है, लोग चूज करेगा क्या? फिर भी उसी में से आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक ठाक हाथों में रहेगा तो करप्शन कम होएगा। ऐसे एक चीज तो मैं बोलूंगा कि कांग्रेस के जमाने में जिस तरह का करप्शन देखने को मिलता था यूपीए टाइम पे, रिसेंट ट्रेंड में मुझे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल सकते हो, बाकी आप लोगों का अपना अपना हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट चलता था 2014 से पहले, मुझे लगता था कि उस टाइम पे ज्यादा करप्शन का रिपोर्ट भी मतलब देखने को मिला, जो बाद में एक्चुअली पता चला। अभी भी करप्शन है, ऐसा नहीं कि बीजेपी एकदम साधु है, ऐसा मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट पहले से मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। जो पुराने जमाने में ज्यादा उनको मौका मिल जाता था। दैट्स अ डिफरेंट एटीट्यूड सर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सही हूँ, आप लोग भी अपना अपना परसेप्शन रख सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि सर सेबी क्या काम करता है। अच्छा ये सब, ये जो चित्रा रामाकृष्णा, ठीक है। अच्छा आईसीआईसीआई का भी आप घोटाला देखो, चंदा कोचर का, वीडियोकॉन के ओनर के साथ वेणुगोपाल धूत, जो कंपनी एकदम खत्म हो चुका है, उसके साथ टाई अप करके, क्योंकि चंदा कोचर का हस्बैंड दीपक कोचर एंड वेणुगोपाल धूत दोस्त है, और आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू से कितना पैसा का, मतलब देखो इतना बड़ा पोस्ट मिला है, कॉस्ट अकाउंटेंट है बाई एडुकेशन, सीएमए, देख सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो नो डाउट सीए सीएमए का एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट है सर। अब अपने रेस्पेक्ट का ऐसा तो नहीं करना चाहिए जो चंदा कोचर जी ने किया है। मतलब इन्होंने क्या किया बोले तो, करीब 1200 करोड़ के आसपास का घोटाला किया, 1700 करोड़ का, जो आईसीआईसीआई बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वीडियोकॉन ग्रुप को दे दिया, और वो भी वीडियोकॉन ग्रुप के साथ इनका हस्बैंड का पूरा कनेक्शन है। और जो वीडियोकॉन ग्रुप को जो दिया ना, वेणुगोपाल धूत का जो कंपनी है, वो कंपनी का वैल्यूएशन का हालत खराब है, लॉस मेकिंग कंपनी है। ऐसी कंपनी को कैसे पैसा दे दिया, किस एंगल से दे दिया? और वीडियोकॉन ने इसको अपना एसेट को एनपीए घोषित कर दिया, वो भी बोल दिया कि मेरा मेरा जो भी अमाउंट है सब एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग हो गया। मतलब आईसीआईसीआई बैंक को लॉस है, और उसका इफेक्ट आईसीआईसीआई के शेयर में भी पड़ा है सर। डिटेल्स पढ़ाई कर सकते हो आप केस स्टडीज में। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, सर हाँ बोलो सर। রিসেন্ট তো জিতেও এরকম একটা ফ্রড স্ক্যাম বেরিয়েছিল। हाँ हाँ हाँ, जी में भी ऐसा हुआ है, जी में हुआ है, डिश टीवी में हुआ है, उसका केस चल रहा है, जी का डिश टीवी का उसका केस चल रहा है। तो बेसिकली मैं क्यों ये सब थोड़ा सा ये सब आउटसाइड वर्ल्ड का बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब देखना पड़ता है सेबी को, तभी मार्केट प्रोटेक्टेड रहते हैं, और टाइम पे एक्शन लेना चाहिए। इट्स रेगुलेटरी jurisdiction extends over corporate in the issuance of capital and transfer of securities in addition to all intermediaries and persons associated with security market. SEBI has been obligated to perform the aforesaid functions by such measures as it thinks fit. It has powers for regulating the business in stock exchange and any other security market, registering and regulating the working of stock brokers and sub brokers, promoting and regulating self-regulatory organizations, prohibiting fraudulent and unfair trade practice, calling for information from, undertaking inspection, conducting inquiry and audit of the stock exchange, mutual funds and other person associated with the security market, and intermediary and self-regulatory organizations in the security market, performing such functions and exercising according to Security Contract Act 1956. मतलब सेबी जो कुछ भी करता है उसमें सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एससीआरए एक्ट 1956 का भी काम होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। ये सब लीगल एरिया है कि सेबी क्या करता है, सेबी का क्या रोल प्ले है, ठीक है, और ये किस एनवायरनमेंट में मार्केट को चलना पड़ता है। फिर आगे देखो, रेगुलेशन इन ट्रेडिंग के ऊपर कुछ बात कहता है। A 24-member committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta was set up by SEBI. एक कॉमिटी का काम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या सिस्टम को डेवलप करने के लिए बना जाता है। ऐसे कॉमिटी बहुत बनाए जाते हैं हमारे देश में, सारा कॉमिटी अपना काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस एंड
अलग अलग मैटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कमिटी एक जरूरत होता है किसी भी मैटर पे डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो राम मंदिर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो स्कैंडल मैटर हो, चाहे वो सेबी रिलेटेड मैटर हो। हाँ सर, कमिटी होता है। इवन सुभाष बोस पे भी कमिटी बनाया गया था। नेताजी सुभाष बोस के साथ क्या हुआ है उसके ऊपर भी हजारों कमिटी बनाया गया है सर, ठीक है। चलो मैं उस ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। A 24-member committee under chairmanship of Dr. L.C. Gupta was set up by SEBI to develop an appropriate regulatory framework for derivative trading in India. On May 11, 1998, SEBI accepted the recommendation of the committee and approved the phased introduction of derivative trading in India, beginning with stock index future. तो 1988 में एक्चुअली डेरिवेटिव मार्केट को बनाने के लिए कमिटी बनाया गया। फिर 2000 के बाद धीरे धीरे ये डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में डेवलप हुआ। उससे पहले इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट नहीं था, डेरिवेटिव मार्केट इंडिया में नहीं था। तो एक चीज आप समझ गए कि एलसी गुप्ता के चेयरमैनशिप में 24 मेंबर के कमिटी के अंदर ये डिसीजन लिया गया कि डेरिवेटिव मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। आज से 25 साल पहले, 25 ईयर्स एगो, द प्रोविजंस इन एससीआरए माने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट and the regulatory framework developed there under governed trading in securities. The amendment of SCRA माने समय के साथ साथ आपको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मतलब अमेंड भी करना पड़ा टू इंक्लूड डेरिवेटिव विद इन द एम्बिट ऑफ सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव को सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर लाया गया। मेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव पॉसिबल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट एक्ट। Any exchange fulfilling the eligibility criteria as prescribed by LC Gupta committee report can apply to SEBI। जो भी एक्सचेंज जैसे बीएससी, एनएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा या करता उन्हीं को मिला है। तो बाद में मिल गया सर, वो सेबी को अप्लाई करता है फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एससीआरए 1956 टू स्टार्ट ट्रेडिंग डेरिवेटिव। इसका मतलब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को क्या नहीं मिला? हाँ जरूर नहीं मिला होगा। तो डेरिवेटिव एक्सचेंज या फिर उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसे भी फुलफिल करना है। The derivative exchange segment should have a separate governing council and representation of trading and clearing members। डेरिवेटिव एक्सचेंज जहां पर भी होगा या सेगमेंट जहां रहेगा वहां एक सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होगा, जहां पर रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर। आपको पता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर आजकल चलता है। शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 40% ऑफ द टोटल मेंबर। टोटल मेंबर का कम से कम 40% ट्रेडिंग मेंबर होना चाहिए ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। The exchange would have to regulate the sales practice। exchange का काम क्या रहेगा? जो सेल चलेगा ना, सेल्स प्रैक्टिस माने बाइंग सेलिंग का of its members and would have to obtain prior approval of SEBI before start trading in any derivative contract। ये रहेगा एक्सचेंज का काम। ये इतिहास है। आज जिस मार्केट को लेके हम लोग पागल होते हैं, ये मार्केट एक दिन में नहीं बना है सर। काफी पापड़ बेलना पड़ा, काफी सारे सिस्टम को फॉलो करना पड़ा, तब जाके। द एक्सचेंज शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स। एक्सचेंज में कम से कम 50 मेंबर होना चाहिए। द मेंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज वुड नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग सेगमेंट का जो भी मेंबर है वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा डेरिवेटिव में, ऐसा नहीं है। द मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव सेगमेंट वुड नीड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन लेट डाउन बाय द एलसी गुप्ता कमिटी। मतलब एग्जिस्टिंग जो सेगमेंट था एक्सचेंज में वही लोग डेरिवेटिव सेगमेंट में मेंबर बनेगा, ऐसा नहीं था। जो एलसी गुप्ता कमिटी का कंडीशन फुलफिल करेगा उन्हीं को मेंबरशिप डेरिवेटिव में मिलेगा। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड्स वुड बी थ्रू अ सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस। मैंने ऑलरेडी आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में पहले भी बात किया। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और हाउस कंप्लाइंग विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन अगेन लेट डाउन बाय द कमिटी हैव टू अप्लाई टू सेबी फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल। डेरिवेटिव ब्रोकर और डीलर, जो भी डेरिवेटिव में ब्रोकिंग का काम करता है, आज के डेट में बहुत सारा हो गया सर। डेरिवेटिव ब्रोकर्स और डीलर्स एंड क्लियरिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। दिस इज इन एडिशन टू देयर रजिस्ट्रेशन एज ब्रोकर। माने ब्रोकिंग रजिस्ट्रेशन के अलावा डेरिवेटिव में काम करने के लिए अलग से, दिस इज इन एडिशन टू देयर रजिस्ट्रेशन एज ब्रोकर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। द मिनिमम नेट वर्थ फॉर क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हाउस शैल बी 300 लाख। ये तो आप लोग पहले भी पढ़े हो, मिनिमम इतना चाहिए। आज के डेट में समय के साथ साथ ये सब चीजों में डेवलपमेंट और भी आ रहा है। कम से कम 300 लाख का नेट वर्थ चाहिए। द नेट वर्थ ऑफ द मेंबर शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। अच्छा, नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होगा?
माने एक ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर का नेट वर्थ कैसे कैलकुलेशन होगा, अकाउंट का बात है सर, ये सब अकाउंटेंसी में भी सिखाया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट नेट वर्थ वगैरह, ये सब एकदम प्योर अकाउंटेंसी फॉर्मेट से आता है। आपके पास जितना कैपिटल होगा और फ्री रिजर्व में जो पड़ा रहेगा, माने जो पहले का अर्निंग फ्री रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से कुछ चीजें लेस करना पड़ता है, लेस नॉन अलाउएबल एसेट। नॉन अलाउएबल एसेट में क्या क्या है देख लो, कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है उसको लेस करना है, प्लेज सिक्योरिटी अगर कुछ है उसको लेस करना है, मेंबर कार्ड लेस करना है, नॉन अलाउएबल सिक्योरिटी माने अनलिस्टेड सिक्योरिटी लेस करना है, बैड डिलीवरीज अगर कुछ है माने बैड डेट टाइप का, यहाँ पर केस है कि डिलीवरी जैसे होता है बैड डिलीवरी माने जो नहीं हो सकता आगे, उसको लेस करना है, मतलब उसको एसेट ट्रीट नहीं कर सकते। डाउटफुल डेब्ट एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल एसेट्स, 30% मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 30% मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसका 30% वैल्यू नहीं लेना है, 70% तक लेना है। ये सभी चीजें क्या हो जाएगा, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से लेस हो जाएगा, लेस होके कंपनी का मतलब या ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का नेट वर्थ का देखा जाएगा। डेरिवेटिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ हाउस शैल बी 300 लाख एंड द नेट वर्थ ऑफ द मेंबर शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। याद रहेगा सर, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख। Exchange have to submit details of the future contract they propose to introduce. The initial margin requirement, exposure limit linked to capital adequacy, and margin demand related to the risk and loss on the position will be prescribed by SEBI exchange from time to time. SEBI की तरफ से या exchange की तरफ से time to time बताया जाएगा। ये मार्जिन के बारे में आप लोग पता है सर, एक्सपोजर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन का कॉन्सेप्ट मैंने फ्यूचर के क्लास में बेसिक्स पे काफी डिटेल्स में बताया और लास्ट 2-3 दिन से भी बताया जा रहा है सर। The LC Gupta committee report requires strict enforcement of know your customer KYC rule and requires that every client shall be registered with the derivative broker. The member of the derivative segment are also required to make their clients aware of the risk involved in derivative. आजकल तो और ज्यादा हो गया, डेरिवेटिव का रिस्क तो एकदम खुलेआम नोटिस दिया जा रहा है सर, है ना। डेरिवेटिव मार्केट का जो रिस्क है खुलेआम नोटिस दिया जा रहा है कि 10 में से 9 लोग फेलियर होते हैं, 50,000 करके एनुअल लॉस करते हैं ऑन एन एवरेज। आप सोच के आओ मार्केट में से भी ये चीज अच्छा है, बताना चाहिए, रिस्क के बारे में नॉलेज तो देना चाहिए, नहीं तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट सुन के सबको आ रहे हैं और रिस्क का बारे में नहीं जानेगा तो पड़ेगा नहीं ना, लोगों को थोड़ा सा डराना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, द मेंबर ऑफ द डेरिवेटिव सेगमेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक देयर क्लाइंट्स अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग by issuing to the client the risk disclosure document and obtain a copy of the same duly signed by the client. The trading member are required to have qualified approved users and salespersons who have passed a certification program approved by SEBI. ट्रेडिंग मेंबर के पास, आप लोग जिसका पढ़ाई कर रहे हो सर, ट्रेडिंग मेंबर के पास जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे ना, सेल्स पर्सन होंगे, ठीक है, ये सब सेबी का अप्रूवल सर्टिफाइड प्रोग्राम पास करके जाना पड़ेगा, तभी जाके वो इस मार्केट में काम कर पाएंगे। मजाक नहीं है, आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट में आना है तो NISM का वेरियस नॉलेज मतलब एग्जाम तो पास करना ही है, एज वेल एज नॉलेज भी लेना है। Members and authorized dealer have to fulfill certain requirements and provide collateral deposit to become a member, माने कुछ certain amount deposit collateral देना पड़ेगा FNO सेगमेंट में काम करना है तो। All collateral deposits are segregated into cash component and non cash component, अलग अलग कर दो। कैश कंपोनेंट मींस जिसमें कैश रहेगा, बैंक गारंटी रहेगा, FD रिसिप्ट रहेगा, टी बिल्स रहेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसका भी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नॉन कैश कंपोनेंट में कोई भी कोलैटरल डिपॉजिट लाइक डिपॉजिट्स ऑफ अप्रूव्ड डीमैट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सब चीजें। नेट वर्थ क्राइटेरिया फॉर क्लियरिंग मेंबर हैज बीन प्रोवाइडेड बाय सेबी, while net worth criteria for trading member and limited trading member have been decided by stock exchange. Few exchange have a special category of members called limited trading members who are not cash market members of exchange. कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो कैश मार्केट में मेंबर नहीं होते, उन्हें स्पेशल कैटेगरी में लिमिटेड ट्रेडिंग मेंबर के तौर पे रखा जाता है। ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू गेट ए रिस्क डिस्क्लोजर, जो ब्रोकर होगा ना, रिक्वायर्ड टू गेट ए रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइंड बाय द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। जब क्लाइंट को रजिस्टर कराया जाता है ना तो आपको बहुत सारे जगह में साइन करवाया जाता है,
डीमैट ओपन करने के टाइम पे। This document informs client about the kind of risk that derivative can involve for the client. It makes the client aware and well informed. वो अलग बात है, किसी को बताया नहीं जाता किसी को बताया नहीं जाता कि इसमें क्या रिस्क है। Apart from the other record, सबको बस इतना बताया जाता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। Apart from other records, trading member record to maintain trade confirmation slips and exercise notice from the trading system for a period of 5 years. All member broker in the derivative segment should be inspected by the exchange at least once a year. A default by a member in the derivative segment will be treated as default in all segment of that exchange and as a result on all exchange where he is a member. The purpose of inspection of stock broker record under SEBI stockbroker regulation 1992 ensure that the books of accounts, मैंने जो accounts maintain करते हैं and other books are being maintained in manner required. जैसे SEBI बोलेगा ब्रोकर को ऐसे ही accounts maintain करना पड़ता है। ऐसे अकाउंट्स के बारे में मैं आपको क्लास बताऊंगा, मैंने अकाउंटिंग एंट्री कैसे होते हैं। The recognition of a stock exchange under the Security Contract Act 1956 can be granted by central government. It provides for direct and indirect control of virtually all aspects of security trading and the running of stock exchange and aims to prevent माने किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चीजें जो भी होगा मार्केट में उसको प्रिवेंट करेगा। It gives central government the regulatory jurisdiction over stock exchange through process of recognition and continued supervision. माने सुपरवाइज करना है एक्सचेंज को, ठीक है, थ्रू रूल्स रेगुलेशंस। कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज, माने आप लोगों को पता है सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी चीजें एज पर रूल्स रेगुलेशंस होगा। अगर कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको पेनल्टी भी लगाया जाएगा। पेनल्टी और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टॉक ब्रोकर अंडर द सेबी रेगुलेशन 1992। द स्टॉक ब्रोकर वायलेट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, पेनल्टी। The stockbroker does not follow the code of conduct, penalty. Stockbroker fails to resolve the complaints of the investors, penalty. Stockbroker indulge in manipulating on price rigging or cornering of the market, माने किसी को भी किसी भी तरह से प्राइस को मैनिपुलेट करना, ठीक है, किसी भी तरह से प्राइस रिगिंग करना, ठीक है, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग एक्टिविटी अगर ब्रोकर करता है। जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिनों पहले तक IIFL के साथ खराब कुछ प्रॉब्लम हुआ है। फिर आपका क्या नाम है, बड़ा फेमस कंपनी था हैदराबाद बेस्ड, कार्वी के साथ खराब हुआ है। स्टॉक ब्रोकर फाइनेंशियल पोजीशन डिटोरिएटेड सब्सटेंशियली अगर है तो भी उसको पेनल्टी लगेगा। स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू पे फीस, स्टॉक ब्रोकर वायलेट द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ब्रोकर इज सस्पेंडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। ये सभी सिचुएशंस में पेनल्टी लग सकता है और पेनल्टी का भी अलग अलग ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है सर मैंने आपको लॉ पढ़ने का सिस्टम तो बता दिया, डिटेल्स में ही आपके साथ मैंने चर्चा किया अभी तक, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट बाकी हैं, जैसे कि रेगुलेशंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये बात और मेजर रिकमेंडेशन बाय डॉक्टर LC गुप्ता कमिटी, ये दोनों पॉइंट में कल डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो क्लास आएगा उसमें मैं आपको अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन मैंने क्या एंट्री करना पड़ता है, ठीक है, किस तरह का एंट्री वगैरह करना पड़ता है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज का क्लास में इतना ही रखूंगा सर, क्योंकि मेरा ना इसके बाद टैक्स का क्लास है, इनकम टैक्स का, जो लोग CA CMA का पढ़ाई करते हैं CS का, तो आज मैं इतना ही रखूंगा, बाकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, घर पे जितना मैं पढ़ा दिया एक बार आप लोग भी खुद से गो थ्रू कर लेना। ठीक है सर। Yes. तो सर कल मिलते हैं, टुमारो मिलते हैं सर। ओके दादा, ओके, बाय सर। बाय सर। बाय दादा। यस सर, बाय। बहुत सारा क्लास अपलोड नहीं हुआ है सर, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मुझे पता है। ओके बाय। सर अच्छी बाय सर। हाँ।